Dear students and aspirants, in previous classes we discussed many chapters of grammar, and at the end we did tenses, simple tenses, progressive tenses, perfect continuous tenses. But it's very important to practice and do testing. Unless you test yourself, the progress cannot be assessed and evaluated. So let us first discuss and recapitulate the important points on tense before taking up some tests. So this video will focus on important points on tenses. So look at number one, first point. In simple present tense, when subject is third person singular number, s or es is added at the end of main verb. This should be clear, because often students and aspirants make mistakes while appearing in university examinations as well as in various competitive examinations. What happens? They will say I thanks or he thank. Both sentences are ungrammatical. So look at, understand it. S or es shall be suffixed to main verb only when third person singular number is a subject. Look at the examples to make it clear. So here, he runs, she walks. You see this s is suffixed here. Why? Because the subject he is third person singular number. He is third person singular number. This is why he runs. But if it is, say, I, or say you, or we, or they, then it will not require suffixing s or es. This will be I run, you run, we run, they run. But he runs, she runs. You see here, s is added, s is suffixed. Why? Everywhere third person singular number. It. So he runs, he plays, he writes, he dances. But I dance. He thanks, she thanks. But I thank, you thank, they thank. Similarly here also, he plays, etc. This should be clear. That was point number one, and example makes it very clear how s is suffixed here, because subject is third person singular number. But this does not happen when subject is first person or second person any number or third person plural number. There is only one situation when subject is third person singular number, s or es shall be added, as here you can see in the examples given here in 3 sentences. Now go to the next main point, next important point on tense. If the main verb, that is action verb, और ये समझ लीजिए कि हिंदी में बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड है कि हिंदी में पढ़ाइए, तो आज मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा क्योंकि हिंदी ज़्यादा समझ में आती है स्टूडेंट्स को. तो जो भी ऐसा वर्ब जिसके मीनिंग में ना लगा हो, जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, हंसना, रोना, भागना, ऑल में ना अंत में आता है, वो हमारा मेन वर्ब यहाँ रिफर करता है. उसको हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं. पढ़ना, लिखना सब में ना होगा हिंदी में. तो जैसे ये समझ लीजिए कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तभी आप एस और एस वर्ब में लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो एस और एस नहीं लगेगा. सो दिस third person singular number, s or es must be added if subject is third person singular number. Now going to the next point, if the main verb is preceded by modal auxiliaries like can, should, ought, might, may, could, would, in that case s or es is not added. मतलब जब भी modal auxiliary यूज होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी सब्जेक्ट है तब भी वर्ब में एस और एस नहीं ऐड होगा कभी भी, चाहे वो शुड हो, ऑट हो, मस्ट हो, मे हो. ये सब एग्जाम्पल ब्लू में दिया गया है, सम ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज. तो अभी देखिए इसमें एस और एस नहीं ऐड होगा, इसलिए इज नॉट एडेड. ये याद रखना है, एस और एस इज नॉट एडेड इन विच सिचुएशन, जब मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होगा. जैसे ये एग्जाम्पल देखिए यहां, शी कैन डांस, ही शुड सिंग,
तो यहाँ चूंकि कैन आ गया इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से भी यहाँ शी कैन डांसेज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है टेंस के बारे में, पॉइंट नंबर 2, ये उसके अनुसार, उसके मुताबिक आप अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है सेंटेंस में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी सब्जेक्ट होने से वर्ब में एस नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ मॉडल ऑक्सिलरी यूज है, मॉडल वर्ब्स का यूज हुआ है। जैसे कैन, ही कैन डांस, यहाँ ही कैन डांसेज नहीं होगा। शी शुड सिंग, यहाँ शुड आया, ये मॉडल ऑक्सिलरी है इसलिए सिंग्स नहीं होगा, शी शुड सिंग होगा, ही शुड सिंग होगा। यहाँ कैन आ गया मॉडल ऑक्सिलरी इसलिए ही कैन डांस होगा, डांसेज नहीं होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से भी ये ध्यान रखना है कि वहाँ ये नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट, दे मे गो, मे इज मॉडल ऑक्सिलरी, दिस इज वाई you must study, here must is modal auxiliary, even though you must study sincerely, only the purpose, ये बताना है, ये आपको समझना है कि मॉडल ऑक्सिलरी जब आएगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी सब्जेक्ट रहने से एस और यस नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, the verb placed immediately after to remains in its plain base root lexeme, ये सबका मीनिंग एक ही है, एक ही चीज को ये रिफर करता है, दैट इज कॉल्ड V1। दिस इज ऑल, चाहे आप प्लेन फॉर्म कहो, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म या लेक्सीम कहो, सबका मीनिंग एक ही है, उसको वो रिफर करता है V1 को। तो जब V1 आएगा, टू आफ्टर टू रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म, मतलब V1 फॉर्म में रहेगा, उसके साथ ना तो ed लगेगा ना ing लगेगा फॉर्म। जैसे नाइदर SES at the end, nor the past form, nor the present participle, जैसे ing form of verb, nor the past participle form of verb can be used। ये क्लियर होना है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी s और ये to जब लगाएंगे तो जिस वर्ब में, जैसे I want to write, I want to play, तो टू प्ले, उसमें टू प्लेज नहीं होगा, प्ले वर्ब में SES नहीं लगेगा अगर इन्फिनिटिव टू आ गया तो, ना वो पास्ट फॉर्म होगा। यू कांट से ही वांट्स टू प्लेड, नो, दैट विल बी रॉन्ग, यही इसका अर्थ है। ना तो ing फॉर्म लगेगा, ये ध्यान रखना है, विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस, कहीं कहीं ing प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल ब्लू में, शी वेंट टू ब्रिंग ए बुक, यहाँ टू इन्फिनिटिव लगा। अब देखो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिर भी यहाँ आप एस नहीं लगा सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटिव टू आ गया, इसलिए शी वेंट टू ब्रिंग ए बुक। नॉट, ऐसा नहीं लिखना या बोलना कि शी वेंट टू ब्रिंग्स, ब्रिंग्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टू इन्फिनिटिव आ गया, और जब ये आ जाएगा तो आने वाले वर्ब में जो फॉलोइंग वर्ब होगा उसमें एस कभी नहीं लगेगा, भले ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्यों नहीं हो। जैसे ए में, एग्जाम्पल ए में, नो, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगेगा, ना ही पास्ट पार्टिसिपल। जैसे शी वेंट टू ब्रॉट नहीं होगा, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म ब्रिंग्ड तो नहीं होगा, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है। और आप ओवर जनरलाइज कभी नहीं करना, जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने समझाया है, बताया है कि डी और ईडी ही नहीं लगता पास्ट पार्टिसिपल बनाने में। देयर आर डिफरेंट रूल्स टू फॉर्म पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। जैसे कट कट कट, शट शट शट, प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ तो ईडी लगा लेकिन बहुत है। जैसे ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, टीच का टीच्ड तो नहीं होगा, ही टीच्ड रॉन्ग होगा, टीच टॉट टॉट होगा, बिसीच बिसॉट बिसॉट। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि पास्ट फॉर्म करेक्टली यूज करें। आई एम टू गो, यहाँ भी देखो आई एम टू गो नाउ। दे आर टू बाई फ्रूट्स, डोंट से दे आर टू वेंट, डोंट से आई एम टू वेंट, डोंट से आई एम टू गोइंग, don't say they are to buying, they are to bought. What will be past form of buy? Bought, buy, bought, bought. Don't say buyed, ed, that will be wrong. This is why I'm saying over generalization of suffixing d or ed to form past and past participle form will make you make mistakes. So इसका ध्यान रखिए कि बहुत सारे तरीके हैं पास्ट पार्टिसिपल बनाने के, न कि सिर्फ ईडी ही लगाने से नहीं होता है। और दिस
Usually, next point, usually ing is added at the end of the main verb if it comes after the prepositions. ये सब prepositions है जिनके साथ अगर जिनके बाद आता है after these prepositions, not all prepositions, after these prepositions usually क्या होगा, ing form आएगा. जैसे व्हाट इज हार्म इन डूइंग दिस, तो यहां देखो ऊपर में इन है, ये इन आया है इस सेंटेंस में, इसलिए व्हाट इज हार्म इन डूइंग दिस. थिंक बिफोर स्पीकिंग, यहां पे थिंक बिफोर स्पीक नहीं होगा, थिंक बिफोर स्पीकिंग. आई केम ऑन रिसीविंग योर लेटर, आई केम फॉर हेल्पिंग यू. I will teach you after completing my work. You see here after, here this for preposition, here on preposition, and here before preposition. I will teach you after working, and then I get respect only by teaching. Which is preposition here? By. So आपको preposition भी हमने पढ़ाया पिछले एक वीडियो में, तो यहाँ पे ये देखना है कि प्रीपोजिशन आप पहचान पाते हो कि नहीं, कौन सा प्रीपोजिशन है ये पहचान पाते हो कि नहीं. तो ये ऐसे प्रीपोजिशन है अबाउट, बिफोर, आफ्टर, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, बाय, जिसको यहाँ यूज़ करके सेंटेंस में दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से समझ लो कि इनके बाद आप ing फॉर्म यूज़ कर सकते हो. जैसे ये ing फॉर्म है, v प्लस ing, यहाँ भी ing, तो सब में यहाँ ऊपर जितना भी एग्जाम्पल्स है सब में ing फॉर्म यूज किया गया है वर्ब का. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द प्रीपोजिशन अबव, सम ऑफ द प्रीपोजिशन, बट दिस शुड नॉट बी ओवर जनरलाइज्ड. ऐसा हमेशा नहीं होगा सिर्फ ये इतने प्रीपोजिशन के साथ. हालांकि प्रीपोजिशंस तो और भी बहुत सारे हैं, सबों के साथ नहीं, सिर्फ ये एक्सेप्शंस है. इतने प्रीपोजिशंस के बाद आने पे वर्ब में ing लगेगा, जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स में दिया. अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं. यूजुअली द क्लॉज बिगिनिंग विद इफ, व्हेन, बिफोर, एज. यहाँ एज 2 बार आ गया है तो एक एज को डिलीट करते हैं, तो ये एज रिपीट है इसलिए काट दो. अनटिल, अनलेस, ये सारे इफ, व्हेन, बिफोर, एज, अनटिल, अनलेस, ये इफ रिमेन्स इन सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस, एंड द अदर clause of the sentence may be put in simple future tense. तो ये पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एक सेंटेंस का, किसी जुमला, किसी वाक्य का फर्स्ट जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देन मे बी पुट इन सिंपल फ्यूचर टेंस. तो एक्शन जो बाद में होता है, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, कोई डिपेंडेंट क्लॉज, तो उसको फ्यूचर में देंगे अगर इससे शुरू होता है मेन क्लॉज. जैसे इफ, व्हेन, बिफोर, एज, अनटिल, अनलेस रिमेन्स इन सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस, देन द अदर, अगर मेन क्लॉज इससे शुरू होता है और वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में है, तो जो एक्शन बाद में होता है उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, रखेंगे. जैसे ये एग्जाम्पल देखने से और क्लियर हो जाएगा. देखिए ये इफ से शुरू हुआ, इफ ही कम्स आई शैल गो. देयर आर 2 क्लॉजेस, एक क्लॉजेस है इफ ही कम्स आई शैल गो. एक्शन जो पहले हो रहा है, पहले कौन सा काम हो रहा है, उसके आने का. अगर वो आता है, इफ ही कम्स आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो ये कंडीशनल है. तो अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो पहले कौन सा एक्शन है, पहले उसके आने का एक्शन है, इसलिए वो प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, ये फर्स्ट एक्शन है. सेकंड एक्शन कौन सा है, आई शैल गो, ये डिपेंड किस पर करता है, इसके आने पे. इसका मतलब अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा. तो इफ ही कम्स, अगर वो आता है, आई शैल गो, तब मैं जाऊंगा. तो सेकंड एक्शन ये हुआ. जो सेकंड एक्शन है वो किस टेंस में है, आई शैल गो, व्हाट टेंस. दिस इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज ऑल्सो वेदर यू हैव अंडरस्टूड द टेंस और नॉट. सो जस्ट आई शैल गो, दिस इज सिंपल फ्यूचर, एंड ही कम्स, दिस इज सिंपल प्रेजेंट. तो पहले जो एक्शन होता है वो
सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में आपको रखना है। सेकंड एक्शन जो है सेमी सेंटेंस का सेकंड क्लॉज जो डिपेंडेंट है फर्स्ट एक्शन पे, तो वो होगा आपको सिंपल फ्यूचर। आई शैल गो, दिस इज सिंपल फ्यूचर, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, ही कम्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आई विल स्टे बैक। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन दोगे तो मैं रुक जाऊंगा, आई विल स्टे बैक। तो कौन सा एक्शन पहले होने वाला है? ये यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दिस एक्शन। तो ये क्या टेंस है? यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, इफ से शुरू है, कंडीशनल है। इफ यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आई विल स्टे बैक, ये आई विल स्टे बैक क्या है? सिंपल फ्यूचर। और ये क्या है? ये आपको यहां पे सिंपल फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट। और ये क्या है? ये सिंपल फ्यूचर। ये सेकंड एक्शन है, इसलिए इसको सिंपल फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज सिंपल फ्यूचर एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट, दिस appear. What makes tense? It's verb only, the form of verb. इसी में अगर हम ऐसा कर देते हैं, if you are appearing in examination, what tense will be? It will become present progressive. If I write here, if you were appearing in the examination, this will become past progressive. You will be appearing in the examination, future progressive. So it's all magic of verb. What form of verb you use accordingly, with the change of form of verb, the tense also changes, because tense is associated with form of verb only basically. Next, unless they study, they can't get high marks. कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? पहले ये हो रहा है, unless they study, ये कंडीशन है कि जब तक वो अच्छे से नहीं पढ़ता है ना, unless they study, अगर वो नहीं पढ़ता है, they can't get high marks, मतलब अगर नहीं पढ़ेगा तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। they can't get high marks, first action simple present, and they can't get good marks, this is again they can't get good marks, this is conditional, model, using model. Next, generally past perfect tense, ये this is important to remember also. Generally past perfect tense is not used in isolation, that is it is used, it is means past perfect tense is used when two actions are described. For describing single action what is used? Simple past. तो look at the examples. ये क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब है, इस नियम का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आप आइसोलेशन में नहीं यूज कर सकते। पास्ट परफेक्ट टेंस तभी यूज होता है यूजुअली जब दो एक्शन को डिस्क्राइब किया जाए। तो जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में होगा। लेकिन ऐसा अगर सिचुएशन हो कि एक ही एक्शन है, सिंगल एक्शन के बारे में बताना है, तो आप पास्ट परफेक्ट से बचिए और सिंपल पास्ट यूज कीजिए। लुक एट द एग्जांपल्स फॉर क्लैरिटी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू द मार्केट व्हेन आई केम, मतलब वो मार्केट ऑलरेडी जा चुका था जब हम आए। ही हैड ऑलरेडी गॉन, दिस इज व्हाट टेंस? दिस इज पास्ट परफेक्ट, एंड देन दिस इज सिंपल पास्ट, आई केम, व्हेन आई केम, मतलब जब मैं आया तब वो मार्केट जा चुका था ऑलरेडी। तो पहला एक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में है, एंड जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल पास्ट में। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक ही एक्शन है, तो उसमें आप पास्ट परफेक्ट को अवॉइड कीजिए, सिंपल पास्ट यूज कीजिए। जैसे यहाँ आ गया शी डांस्ड, या जैसे आई रोट, ही स्माइल्ड, ही प्लेड। तो ऐसा जब सिंगल एक्शन होगा तो वही होगा। लेकिन इसी में अगर ये हो जाए कि वो नाच चुकी थी गेस्ट के आने के पहले, तो क्या हो जाएगा? शी हैड ऑलरेडी डांस्ड बिफोर द गेस्ट केम। क्लियर? लेकिन एक ही एक्शन है तो सिंपल पास्ट होगा। हियर फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी दैट इज एक्सप्लेन्ड, ये ऑलरेडी आई डिड, दिस इज पास्ट,
and the only single action that was in simple past sentence. She danced is therefore. Now next point, and all these points I have drawn from my own book, that is English for Communication. From that book this is taken. In our writing we should maintain consistency of these, means tense ka consistency. We should not mix tenses. Usually the verb of the main clause is in past tense. He said that Rosie and Hinda did it. He said that Rosie and Hinda did it. So this is what? Simple past. I said that he did not disturb me. Again simple past I said, and this is also past. This is narration. Now today this much I discussed main points, tried to recapitulate what are the main points for you to keep in mind on tense. Today this much. Just like, share and subscribe. Help your other friends also who are studying in colleges, universities or preparing for competitive examinations. Thank you for watching the video.